some ground perspective, and for that I'm joined in by Mithilesh Gupta, who's also joining us live. I'm also in fact joined in by one more correspondent. We'll just quickly go across to Mithilesh. And in fact, I can see Manoj is also joining in. Manoj, if you can quickly give us a sense of what's happening. We are being told that there could be another death that's taken place. If you can give us a sense of how many are currently battling for their life as well. The official figure, as far as the government is concerned, that official figure is still at 4. On the other hand, Mayor Pushpitra Bhargava, he has put it at 7. But it is rising. Obviously, it is more than 14 because more than 150 people are still undergoing treatment in different hospitals in Indore. But what is shocking here, as you have been referring to, in fact, if you look at the entire situation in Indore, that the Indore Municipal Corporation committed a series of blunders which led to such a tragic situation in this city, which has been getting this award of the most clean city, the cleanest city of India for 8 consecutive years. You can see how this tender, which was decided to be floated 1 year back, but they could not get it implemented even today. In fact, it has been taken up again on 30th of December after this tragedy, when they saw these people dying, so many people getting undergoing treatment in different hospitals because of this contaminated water. So obviously Indore Municipal Corporation should be held responsible, whether it is mayor, whether it is Indore Municipal Corporation commissioner. Why they didn't do their job? Why didn't they get all these projects which were necessary for supply of the clean drinking water in the city? Why these projects were not completed in time? And similarly, exactly that was happening with Amrit 2 scheme. In fact, more than 1,700 crore rupees was allotted to this city in the financial year 23-24. But all those projects were still not, neither they are completed, and even some of them are even waiting for their tender. Stay with me, Manoj. Let me quickly bring in Mithilesh also on the broadcast, who's joining us right now. Mithilesh जी, सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि लगभग मिड दिसंबर तक, मान लीजिए 15 दिसंबर तक तकरीबन कहा जा रहा है कि रेजिडेंट्स ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया था। उन्हें पानी में फाउल स्मेल आ रही थी, डिस्कलर्ड लग रहा था, पर और इनफैक्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन 25 तारीख तक कंटिन्यू किया है, जब तक कि 27 या 28 तक लोग बीमार पड़ना नहीं शुरू हो गए। तो 10 दिन तक अगर आप देखा जाए तो म्युनिसिपल ऑफिशियल्स ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और 300 शिकायतें हुई थी, 300 कंप्लेन भागीरथपुरा के लोगों ने दर्ज कराई थी। वो लगातार शिकायत कर रहे थे। 311 जो नगर निगम का जो ऐप है जिसमें शिकायत की जाती है, लगातार वो शिकायत कर रहे थे। यहाँ तक वो जोन ऑफिस पर भी जाकर शिकायत कर रहे थे कि हमारे घरों में पानी गंदा पहुँच रहा है, जो पानी आ रहा है उसमें बदबू है, उसमें कीड़े नज़र आ रहे हैं। उसके बाद भी लगातार पानी की सप्लाई की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात है, जब रिपोर्ट क्या आती है, जब रिपोर्ट से कन्फर्मेशन होता है कि जो पानी है उसके अंदर अलग अलग बैक्टीरिया नजर आए, यानी भागीरथपुरा के जो लोग हैं वो चैम्बर का पानी पी रहे थे, नाले का पानी पी रहे थे, जिसकी वजह से अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। 15वीं मौत हुई है। इस वक्त हम उन्हीं के घर के बाहर मौजूद हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं गीता भाई, इनका इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। पिछले 8 दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थी। इंदौर में 15 मौत हो चुकी है, 201 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 32 लोग का आईसीयू में इलाज चल रहा है। लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं भागीरथपुरा के। कंप्लेन बार बार की गई, लेकिन कभी अधिकारियों ने नहीं सुनी। वो पाइपलाइन जिसके लिए 2 साल से सिर्फ फाइलों में ही काम चल रहा था, लोग बीमार हो रहे थे, लोग परेशान थे, लेकिन समाधान जो है, समस्या का समाधान अधिकारी दस्तावेजों में ढूंढ रहे थे। किया हुआ बराबर उन्होंने, तभी तो जाके ये परिणाम हुआ है। मतलब जो दूषित पानी की शिकायत हुई है और जिसके कारण लोग बीमार हुए हैं, निश्चित रूप से वो अधिकारियों की लापरवाही है। ये गीता भाई कब से बीमार हुई थी? इनको करीबन हो गए 8 दिन करीबन, तो 6 दिन तो एडमिट ही रही हैं वो, 6-7 दिन, 15 दिन, मतलब जिसमें 3 दिन तो वो बाय में हॉस्पिटल में एडमिट रही, फिर घर लाए, फिर वापस बिगड़ी स्थिति तो अरविंदो में एडमिट कराया, तो वहाँ पर तो आज ये 9:30 बजे एक्सपायरी हो गई। इन मौतों के लिए किन्हें जिम्मेदार मानते हैं? अब सर देखो, हम तो अभी हमारी भाभी जी का दुखद निधन हो गया है, पर ये कि भतीजे ने बोला था कि मम्मी को उल्टी दस्त लग रहे हैं, तो मेरा एमआई ले जाओ, तो फिर 2-3 वहाँ एडमिट करके फिर पता पड़ा नगर निगम की तरफ से सुविधा है कि फ्री इलाज हो रहा है।
फिर अरविंदो में एडमिट कराया था। तो शिकायत वही थी कि उल्टी दस्त हो रहे थे, वो जो जिस तरह से भागलपुर में चल रहा है। तो बस सर यही है, आज सुबह भाभी जी एक्सपायर हो गए हमारे। गंदा पानी पी रहे थे लोग यहाँ के। हाँ, भागलपुर की काफ़ी खबर आई है सर कि काफ़ी लोग दूसरी जल से बीमार हैं। तो हमारा भैया भी बीमार हुए थे और भाभी जी, वो उनका बेटा भी हुआ था, वो दवाई लेके ठीक हो गया है। लेकिन अभी स्थिति ये कि शिकायतें तो आ रही है घर परिवार मोहल्ले की। शिकायतें आ रही हैं हाँ, लगातार, काफी अभी भी लगातार। मरीजों की संख्या सामने आ रही है। संख्या तो बढ़ रही है। अब कभी कभी देखो सर, मेडिकल साइंस में होता है कि कोई चीज़ होती है लेकिन उसका असर बाद में भी शुरू होता है। जी। हो सकता है कि इसका बाद में असर शुरू हो रहा हो, उसके फिर इसकी तो जांच होना चाहिए सर। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल और सर। दोषियों पर कठोर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अरे सर, अब हमने तो अपने परिवार का होगी तो सही। दोषी जो लोग हैं, भैया हमारे घर के हमने हमारे सदस्य 4 गुबा दी है, तो हमारे दिल से पूछो ना हमको कैसा लग रहा। अब अरे हमारी मैया जी चली गई, जैसे आपके सामने ये दिख रहा है जो हमारे घर में जो चल रहा है, हाँ, सही बात तो है। हमारे दिल पे फूटते ना हमारे बड़े भाई से इस पूछ वक्त लीजिए। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ भागीरथपुरा के गली में मौजूद है। हर गली से अलग अलग जितनी भी गली आप जाएंगे, हर जगह से दर्द की तस्वीर सामने आएगी। हर जगह पर जो लोग हैं मायूस हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराशा है, क्योंकि अब वो अपनों को खो रहे हैं, अपने लोगों की जान जा रही है। कई सारे ऐसे घर हैं जहाँ अस्पतालों वो लोग भर्ती हैं, घर में कोई भी नहीं है, पूरा घर खाली पड़ा हुआ, छोटे छोटे बच्चे घरों पर हैं। दूसरी तरफ को तस्वीर सामने आ रही है जहाँ पे लोगों की जान जा रही है, तो लोग अपनों को खो रहे हैं। अपनों का दर्द साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, साफ तौर पर देखा भी जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, ये अधिकारी लगातार शिकायत हो रही थी, उसके बाद भी उन्होंने एक बार भी आके इनकी सुध नहीं ली, कभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और सबसे हैरानी की बात है, 2000 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च किया जाता है इसी देश के सबसे स्वच्छ शहर में। पानी पर जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च किया जाता है। सीवरेज के लिए 200-250 करोड़ रुपए का बड़े आसानी से प्रोजेक्ट यहाँ पर पास कर दिया जाता है। तो देखिए 7000 करोड़ वाला ये नगर निगम है, और इस नगर निगम के अंदर दूषित पानी पीने से, चैम्बर का पानी पीने की वजह से 15 लोगों की जान चली गई। सवाल तो उठेगा, हालांकि जैसे ही सवाल इन जिम्मेदारों से पूछ रहे हैं, वो सीधा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अधिकारियों की गलती है। अगर अधिकारियों की गलती थी तो मिथिलेश जी, बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा है ये। और जैसे कि आपने हाईलाइट किया, 60,000 crore rupees has been invested in the municipal corporation in Indore, which ironically boasts of being ranked as the cleanest city in India. And